Hello students, how are you? In our previous class we finished the magnification and we also discussed about the important points or some important things that we have to consider in our numericals. Okay, and in today's class I am starting the numericals of spherical mirrors. Clear? Before starting, let me rewind because if we memorize that points, then we can solve the numericals. Okay, the first thing that we discussed, that for the numerical, the object distance which is given we have to take in negative value. Second, if the height is given, then h is, we have to take u is negative. If height is given, then that means h, then we have to take that is positive. That two things are related with the numerical, related with the object which generally given in our numerical. And after that, the radius of curvature or focal length of mirror or lens is given. So for the concave, if we consider that r and f, then for two conditions, for concave and for convex. If that is concave, then we have to take r and f focal length as negative, and if it is that is convex, then we have to take it positive. Okay, clear? After that, when we solve the numerical, then we finally reach either m or h dash. In numerical, we will obtain two types of values. First, it may be negative, it may be positive. Okay, if that is negative, that means real and inverted image, while if that is positive, then it is virtual and erect or upward image. Okay, got it? And the numerical values of m can be less than 1, equal to 1, or greater than 1. Greater than 1. These three things can be possible. One student asks that why we are taking 1. Since m is the ratio of h dash upon h, m जो है वो h dash और h का रेशियो है, तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं. तो बराबर होंगे तो आंसर कितना आएगा? 1. या इनमें से एक बड़ा या एक छोटा हो सकता है. अगर कोई भी बड़ा हुआ, जैसे ये बड़ा हुआ, तो आंसर विल बी मोर देन 1, और अगर ये बड़ा हुआ तो लेस देन 1. यही तो आएंगे. गॉट इट? सो दैट इज 1 is used here. That's why 1 is used here. Okay, so if m is less than 1, that means small image. It means small image. If m is equals to 1, then it means equal size. And if m is greater than 1, m जो है वो greater than 1 हो, तो उसका मीन्स होता है that is large image. Image कैसी है? That is large. Okay, these things we have to mind, or we can say that they should be in our mind when we start the discussion about the numericals. Okay, clear? Now firstly, I am taking the example of the book, according to which the question is a shaving mirror is at 20 centimeter from the face of a person. फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक शेविंग मिरर जो है वो एक पर्सन के फेस से 20 सेंटीमीटर दूर रखा है, यानी कि ये फेस है और 20 सेंटीमीटर दूर है. तो दैट मीन्स अपने को पहला क्या दे दिया? फेस. हमारे लिए मिरर के लिए फेस क्या हो गया? दैट इज ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले अपने को दिया हुआ है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको अपन क्या बोलते हैं? दैट इज
u अपने को दिया हुआ है और कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और u हमेशा कैसा लेना है नेगेटिव, तो ये वैल्यू कैसी आएगी दैट इज -20 सेंटीमीटर। गॉट इट? अंडरस्टैंड? सेकंड अपने को दिया हुआ है आगे इस क्वेश्चन में है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए शेविंग मिरर इज 80 सेंटीमीटर, अगर फोकल लेंथ मिरर की 80 सेंटीमीटर, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट अपने को क्या दे दिया, फोकल लेंथ, यानी कि एफ आपको दिया हुआ कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर। अब मिरर कौन सा है, याद कीजिए अपन ने कॉनकेव मिरर के जो एप्लीकेशंस हैं, यूजेस हैं, वो पढ़े थे, तो अपन ने वहां पे पढ़ा था यूज इन मेकिंग शेविंग मिरर्स, किसमें यूज किया जाता है इसका, शेविंग मिरर्स बनाने में, तो दैट मीन्स ये कौन सा है कॉनकेव, और कॉनकेव के लिए आर कैसी होती है दैट इज नेगेटिव, तो दैट इज नेगेटिव। गॉट इट? आगे बोल रहा है देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एंड ऑल्सो मैग्निफिकेशन। तो अपने को अब दो चीजें पूछी गई हैं, एक तो बोला है डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी कि अपने को पूछ लिया इमेज डिस्टेंस, वी अपने से आइडेंटिफिकेशन पूछ रहा है, और सेकंड बोल रहा है मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन पूछने का मतलब है अपने से ये पूछ रहा है कि नेचर वगैरह जो है, नेचर साइज, वो अपने को आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि नेचर तो बताएगा ये और साइज का पता चलेगा इससे। गॉट इट? तो ये अपने को यहां पर आइडेंटिफाई करना है। ओके, इफ वी कंसिडर द फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर, देन वी फर्स्टली डिस्कस अबाउट द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला अपन ने डिस्कस किया था। मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, और सेकंड अपन ने डिस्कस किया था मैग्निफिकेशन, एंड मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू होता है आइदर h' और -v/u। अगर न्यूमेरिकल में h दिया हुआ हो तो h' से निकालते हैं, वरना अपन किससे निकालेंगे v/u से। तो अपने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा भाई, v अननोन है, तो मैग्निफिकेशन के लिए अपने को v निकालना है, और वैसे भी v निकालना है, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं इमेज डिस्टेंस। तो सबसे पहला अपना कैलकुलेशन है इमेज डिस्टेंस v। okay, since the formula of the mirror that is 1/f is equals to 1/v plus 1/u। मिरर का फॉर्मूला क्या है 1/f is equals to 1/v plus 1/u। अब v अपने को निकालना है, तो इसको इधर ले आओ, तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा 1/f minus 1/u is equals to 1/v, ये बचेगा। अब इस 1/v को मैं यहां लिखूं या पीछे लिखूं तो कोई फर्क थोड़े पड़ेगा। ओके, तो 1/v इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 1/f माइनस 1/u। गॉट इट? नाउ पुट द वैल्यूज। 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, f कितना है दैट इज -80 सेंटीमीटर, माइनस u कितना है -20 सेंटीमीटर। ओके, अब जो भी साइन हो उसको ऊपर ले आओ, इसमें तो प्लस है तो प्लस में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इनको ऊपर लाओगे तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी दैट इज माइनस, और इसको ऊपर लाओगे तो ये कितनी हो जाएगी दैट इज प्लस। तो 1/v इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/80 प्लस 1/20। नाउ 1/v दोनों का एलसीएम लो। मैथ में आप एलसीएम कैसे लेते हैं दैट्स योर मैटर। डायरेक्ट एलसीएम लेने का जो सीधा सा फॉर्मूला है, जो लार्ज डिजिट है उसकी टेबल बोलना स्टार्ट करो, और फर्स्ट वो नंबर जिसमें स्मॉल का भी डिवाइड हो रहा है दैट इज दोनों का। गॉट इट? तो दोनों का लेंगे तो कितना आ जाएगा दैट इज 80 बन जाए 80, 20 का जाता है तो एलसीएम कितना हो गया दैट इज 80। हाउ मेनी टाइम्स दैट इज माइनस ऑल्सो। How many times? 1 time, that is -1. How many time? 4 time.
तो दैट इज +4, तो कितना आ गया 3/80, ये 1/v आया है, सो v इज इक्वल्स टू 80/3, 80/3 सॉल्व करोगे तो आएगा दैट इज 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 बच गया 20, 3 6 जा 18, 20 अगेन 6 6, तो उसको 7 कर लेते हैं, तो दैट इज राउंड ऑफ करेंगे तो दैट इज 26.67 सेंटीमीटर, ये आया है इसका v। Got it? अंडरस्टैंड? v कैसे निकालते हैं? नाउ सेकंड जो अपने को पूछा गया है दैट इज मैग्निफिकेशन, तो नाउ लेट वी स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट इट। मैग्निफिकेशन दैट मीन्स m अपने को निकालना है, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h या माइनस v अपॉन u। अपने पास h डैश h है नहीं, h के बारे में कोई इंडिकेशन नहीं है, तो अपन किसका यूज करेंगे, m इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। गॉट इट? नाउ पुट द वैल्यूज, m इज इक्वल्स टू माइनस v इज इक्वल्स टू, ये लिख दो या ये लिख दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लिख लेते हैं, तो दैट इज 80/3, दैट इज 80/3 डिवाइडेड बाय u कितना है -20, दैट इज ऑल्सो माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस से माइनस कट, तो m इज इक्वल्स टू बच गया 80/3 मल्टीप्लाइड बाय 20, हाउ मेनी टाइम, 4 टाइम, सो m इज इक्वल्स टू 4/3 पॉजिटिव वैल्यू, सॉल्व करोगे तो आएगा 1.33। गॉट इट? आंसर पॉजिटिव है, m का आंसर कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव आने का मीन्स कैसा है, दैट इज वर्चुअल इरेक्ट, तो अपन बोल सकते हैं सो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, न्यूमेरिकल वैल्यू पे आओ 1.33, दैट मीन्स ग्रेटर देन 1, 1.33 का मीन्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या हो गया, इमेज इज लार्ज। गॉट इट? तो इमेज कैसी है, दैट इज लार्ज। गॉट इट? सो वी कैन से दैट, सो इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज, चाहे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज। हाउ मेनी टाइम लार्ज, दैट इज 1.33 आंसर है, तो दैट इज कितना आएगा 1.33 टाइम लार्ज। गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है इफ अगर अपने को v वगैरह पूछा गया है तो। ओके, सिमिलर एक और क्वेश्चन अपन कंसिडर करते हैं, आई थिंक ये तो समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट, देखेंगे जो रिक्वायर्ड होगा उसको रखेंगे, बाकी उसको हटाएंगे बाद में। ओके, नाउ सिमिलर क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, चलो इरेज करते हैं, वापस से लिखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ 6 सेंटीमीटर इन हाइट, यानी कि आपको स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, फर्स्टली आपको बताया गया है ऑब्जेक्ट हाइट आपको बताई जा रही है, यानी कि h की वैल्यू गिवन है दैट इज 6 सेंटीमीटर, और h हमेशा कैसा लेना है, पॉजिटिव। गॉट इट? सेकंड स्टेटमेंट है इज हाइट इज प्लेस्ड एट 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉनकेव मिरर, दैट मीन्स आपको सेकंड आपको बताया जा रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि क्या बोल रहा है कि वो कॉनकेव मिरर से 6 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि 6 सेंटीमीटर आपको क्या दे दी, u। ओके, अंडरस्टैंड? आगे स्टेटमेंट है फ्रॉम कॉनकेव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया गया इस बार, दैट इज
रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि आर गिवन है, कितना है, दैट इज 24 सेंटीमीटर। अब कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव। क्या बोला था मैंने, हैविंग रेडियस ऑफ फ्रॉम कॉनकेव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर, तो कॉनकेव है, तो कॉनकेव के लिए कितना आएगा, दैट इज -24। आगे क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। अपने को पोजीशन साइज और नेचर अपने को फाइंड आउट करनी है, गॉट इट। अब अपने को तो एफ चाहिए, तो इससे अपन निकाल सकते हैं, सिंस फोकल लेंथ एफ जो होती है वो कितनी होती है, r/2। याद होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 24 का हाफ 12 -12 सेंटीमीटर। अब आपको f दे दिया। नाउ सिमिलरली अब आपसे पूछा गया इमेज डिस्टेंस, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं फर्स्ट इमेज डिस्टेंस। 1/v इज इक्वल्स टू था 1/f माइनस 1/u। कैसे आता है ये भी अपन ने डिस्कस किया, वैल्यूज पुट कीजिए। 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, f वैल्यू इज f, दैट इज -12 सेंटीमीटर, माइनस u कितना है, दैट इज -6 सेंटीमीटर। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/12 माइनस 1/12, और ये माइनस ऊपर जाने पर 1/6। सो v इज इक्वल्स टू हो गया, एलसीएम हो गया दोनों का 12, हाउ मेनी टाइम, -1 हाउ मेनी टाइम, 2 टाइम, तो +2, यानी कि कितना बच गया, 1/12। तो v इज इक्वल्स टू आ गया 12 सेंटीमीटर। v कितना है इसमें, 12 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। ओके, सेकंड अपने से पूछा गया है magnification. The second thing which we have to find out, that is magnification. M is equals to, now in this question the object height is given. अब अपन चाहे तो वी यू से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वी भी आ गया और यू दिया हुआ है, लेकिन जब एच दिया हुआ हो तो हमेशा अपने को क्या निकालना है, एच डैश अपने को फाइंड आउट करना होता है, राइट। तो m का h डैश का फॉर्मूला क्या हो गया, m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू, वैल्यूज पुट कीजिए, h डैश, अच्छा सॉरी वैल्यूज, h डैश तो अपने को फाइंड आउट करना है ना, सॉरी मैग्निफिकेशन ही अपने को हाइट फाइंड आउट करनी है। न्यूमेरिकल में शायद हाइट दिया हुआ होगा, नेचर ही दिया हुआ है, तो नेचर के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, हाइट ऑफ इमेज। h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू v अपॉन u भी तो होता है, तो उसको अगर इसको करें तो दैट इज -v अपॉन u। बट इट समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है अपने को, बट इट h डैश दिया हुआ हो तो हमेशा h डैश अपने को फाइंड आउट करना है। तो m h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू कितना आ गया, -v अपॉन u। So h dash is equals to -v multiplied h divided by u. So h dash is equals to, वैल्यूज पुट कीजिए, -12, h कितना है, प्लस का 6, u कितना है, माइनस का 6, गॉट इट। माइनस से माइनस कट हो गया, 6 से 6 कट हो गया, तो कितना बच गया, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ओके, अब आपकी मर्जी है, m निकालो तो निकाल लो ना, डायरेक्ट अपने को आंसर दिख रहा है भाई, h कितना आ गया 12, और h डैश कितना आ गया 12, और h कितना है 6, तो वैसे नहीं बता सकते अपन, आप चाहो तो वैसे m निकालना चाहो तो m भी निकाल सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से डायरेक्ट यहीं पे आंसर अपने को नहीं मिल जाएगा। तो इसी से अपन कंपेयर करें तो बोल सकते हैं सो, अच्छा h डैश की वैल्यू पॉजिटिव आई है, h डैश की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो बोल सकते हैं सो इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड 12 6 बड़ा है 12,
दैट मीन्स लार्ज। लार्ज भी आप बताना चाहे तो आप बोल सकते हो कितना बड़ा है, डबल हो गया, तो दैट मीन्स 2 टाइम लार्ज। अगर आप लार्ज में भी बताना चाहे तो क्या बता सकते हैं, दैट इज 2 टाइम लार्ज। गॉट इट। तो ये दो टाइप के न्यूमेरिकल आई थिंक क्लियर हो गए होंगे कि अगर अपने को h नहीं दिया हुआ हो तो अपन v और m से उसको चलना है, और अगर h दिया हुआ हो तो h डैश निकाल कर अपन इस चीज का जो भी अपना न्यूमेरिकल है उसका आंसर अपन दे सकते हैं। गॉट इट। These two numericals I think clear in your mind. The different type of other numericals we will discuss in next class. Okay, clear?